Yes, students, hello, good morning and welcome to the class. I hope you all are doing great. कैसे हैं आप सब? Yes. So now you all know that yesterday's class we had already started the chapter 7, the necklace. It was about a woman named Matilda, and she was a woman जो हमेशा बहुत unhappy रहती थी. Why she was always unhappy? Because the kind of life she was living, she was not at all satisfied. उन्हें चाहिए थी बहुत ही luxury वाली life चाहिए थी. She wanted to enjoy a life full of luxuries, and because of that thing उन्हें जिस तरह की लाइफ मिली, अब क्या है जैसा हम चाहते हैं हमारे साथ वही चीजें हो, इट्स नॉट एट ऑल कंपल्सरी, जरूरी नहीं है वैसा हो. तो क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं था, तो दैट इज व्हाई द थिंग्स ऑलवेज केप्ट हर अनहैप्पी. बट दिस टाइम शी गॉट इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी, and for that party she was also sad. Now when her husband asked that why you are sad, I thought you will be very happy, तुम तो बहुत खुश हो जाओगी, तो तुम क्यों दुखी हो? You know what reason she is giving? She says, what to be happy about it when I don't have a beautiful dress to wear on this grand party? वहां अपने पुराने कपड़े पहन के जाऊं, अपना मजाक बनवाऊं, यही तो चाहते हो तुम. These things are never going to make me happy. तो इसलिए she was sad. But somehow husband ने कुछ मनी सेव किया था. He gave that money कि कोई बात नहीं, तुम ये पैसा लो और इससे अपने लिए ड्रेस लेके आओ. Now the troubles kept on coming. Now the next trouble came. She says कि ओके ठीक है ये तो हो गया, but now why you are sad? अभी भी तुम बहुत दुखी हो. Why? She says yes, I am sad because don't have any jewelry to wear with this dress to make me look more beautiful, to adorn myself with it. Now the trouble comes, but this time the husband is helpless. उनके पास ऐसी कोई savings नहीं है, कोई पैसा नहीं है that he can buy a new jewelry for her. And but he comes up with an idea, and he says that you have a very rich friend, that is Madam Forestier. तो तुम अपनी friend के पास जाओ and definitely she will lend you some of her precious jewels. This time नाउ जो हमारी मेटिल्डा है, शी ऑल्सो सेज कि यार आइडिया तो सही है, वाई ऐसा आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया. शी वेंट्स टू दैट फ्रेंड एंड शी सेज यस डेफिनेटली आई विल गो. हालांकि उन्हें अपनी उस फ्रेंड के पास में जाना अच्छा नहीं लगता है. वाई? बिकॉज द फ्रेंड इज वेरी रिच, और जब वो वहां जाती है तो उन्हें हर बार अपनी गरीबी का एहसास होता है. द थिंग ट्रबल्स आर अ लॉट. बट दिस टाइम शी गोज देयर बिकॉज उसका खुद का मतलब था, सेल्फिश मोटिव. शी वांटेड टू हैव अ ज्वेलरी फ्रॉम हर. वो वहां जाती है. She takes jewel from her. She asks her कि क्या आपके पास में कुछ है, तो वो उसको बोलते हैं yes, I have some, you can take. तुम बिल्कुल ले सकती हो. तो वो उसको वो ज्वेलरी जो होती है वो सारी उसको दे देती है. एंड शी सेज कि जो पसंद है वो ले लो. अब फाइनली मैडम लॉइज जो होती है हमारी लॉइजल, मैटिल्डा लॉइजल, वो अपने पसंद से एक ले लेती है वहां से ज्वेलरी. डायमंड का एक वो पूरा ले लेती है, नेकलेस ले लेती है. And when she wears it, वो वैसे बहुत beautiful है. When once she wears it, she looks extremely beautiful. बहुत ही प्यारी लगती है वो. And everyone in that ball party likes her, adores her. हर कोई उससे आके बात करता है. Everybody wants to dance with her, talk to her, introduce themselves to her. तो ये सब चीजें चल रही है. All together, she was a great success at a party, with a beautiful dress and a very beautiful face that she has, and a beautiful, amazingly beautiful diamond necklace that she wore. But this is not all. When the party was over and they were returning back home, she was out on the street with her husband waiting for the cab, and the husband just put a wrap on her over her shoulders. And वो रैप उनका कौन सा था? पुराना सा रैप था. बिकॉज अब रैप भी आप मांग के लाओ, नया लाओ, इट्स नॉट एट ऑल अ नीड. सो शी वाज जस्ट हरिंग डाउन, कि जल्दी थी उसको कि फटाफट यहाँ से निकलूं. बिकॉज द लेडीज हु थॉट दैट आई हैड डायमंड नेकलेस, आई हैड सच ब्यूटीफुल ड्रेस, वो मेरा ये फटा पुराना सा रैप देख लेंगी तो दे आर गोइंग टू मेक फन ऑफ मी. व्हाई? बिकॉज उन्होंने खुद तो कैसे रैप्स पहन रखे थे, बहुत रिच और बहुत ही ब्यूटीफुल रैप्स पहन रखे थे. नाउ शी सेज कि ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी. नाउ वी हैव टू डेफिनेटली डू समथिंग. अब उन्होंने इस सिचुएशन में क्या किया? दे took the cab, they came home, and coming back home, she stood in front of a mirror and she started removing her wrap, and just for the last final beautiful look, वो अपने आप को एक और इस एलिगेंट लुक में एक बार और अच्छे से खुद को देखना चाहती थी. That she is looking damn beautiful, and she wanted to look one last time for all the final view of her in herself in her glory. And but looking at herself, she uttered a cry. चिल्लाने लगी, रोने लगी. Why? Because the necklace was not around her neck. Because वो necklace नहीं था उनकी neck के around. Now this was the trouble कि वो necklace कहाँ गया, अब वो क्या करेंगी.
नाउ व्हाट डू मैडम एंड मिस्टर लॉइजल डू नेक्स्ट? अब वो क्या करेंगे? हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? वो कैसे नेकलेस को रिप्लेस करेंगे? लॉइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर? Now Loisel already half undressed, उन्होंने कहा what is the matter? क्या हो गया? What is the matter? She turned towards him excitedly, वो बहुत ही excitedly उनकी तरफ turn हुई. I no longer have Madam Forestier's necklace. उन्होंने बोला मेरे पास नहीं है. Now husband एकदम से आए, बोले क्या हुआ? He was already half undressed and उन्होंने बोला तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात हो गई? And she turns towards him excitedly and उसने बोला मैंने मेरे पास में मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है. He arose in dismay and dukh, parishani, trouble all together came. What? How is that? It is not possible. उसने बोला क्या कह रही हो? नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? It's not possible. And they looked in the folds of the dress. उन्होंने पूरी ड्रेस के हर एक फोल्ड में अच्छे से चेक किया. Sometime क्या होता है ज्वेलरी आपके नेक से आपके ईयर से निकल के कहाँ चली जाती है? Somewhere कहीं अराउंड वो हैंग हो जाती है आपके कपड़ों में. Folds of the clock in the pockets everywhere and they could not find it. और वो उनको वो नहीं मिली वो that piece of jewelry. He asked, उन्होंने बोला, you are sure you still had it when we left the minister's house? उन्होंने बोला, you are sure, तुम sure हो that you still had it? जब आप मिनिस्टर के हाउस से हम निकले थे after the party, you still had it? तुम्हारे पास वो था? उन्होंने बोला पक्का था, बताओ मुझे ये चीज. But yes, I felt it was as we came out. उसने बोला हाँ मेरे को feel हो रहा था that the necklace was around my neck when we came out of that party. But when we came out of minister's house, but if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. उन्होंने बोला but देखो अगर सड़क पे कहीं गिराया होता ना तुमने तो कहीं ना कहीं हमें उसकी आवाज आती है ना. क्या आती? हमें उसकी आवाज आती गिरने की. तो पक्का वो कहीं कैब में गिरा है द टाइम वी वर कमिंग बैक. Now this says yes it must be possible. ऐसा हो सकता है. It is possible. Did you take the number? उन्होंने बोला कैब का नंबर नोट किया था. No. And you did you notice what it was? No. उन्होंने बोला नहीं मैंने तो नंबर नोट डाउन नहीं किया. बट क्या तुमने किया था? उसने बोला नहीं मैंने भी नोटिस नहीं किया कि वो क्या था. Did you notice it? Says no I didn't notice that. They look at each other utterly downcast. वो एक दूसरे को बहुत परेशान होकर देखते हैं. Finally Loisel dressed himself again. फाइनली लॉइजल ने फिर से अपने आप को कपड़े वपड़े ढंग से पहने. बिकॉज ढूंढने जाओ चाहे पुलिस के पास जाओ कहीं भी जाओ आपको थोड़ा सा ड्रेसअप तो होना पड़ेगा. नाउ आप कहाँ घर आके अनड्रेस होके नाइट ड्रेस में कंफर्टेबली सोना चाह रहे थे. बट नाउ यू हैव टू गो आउट फॉर व्हाटएवर रीजन फॉर व्हाटएवर वर्क. आपको यू हैव टू ड्रेस योरसेल्फ अगेन. नाउ ही सेज आई एम गोइंग. ही सेड उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ. over the track where we went on foot to see if I can find it. उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ on that track particularly, उस ट्रैक पे देख के आता हूँ जहां पे we were walking on foot जब हम चल रहे थे. Maybe to see if I can find it over there. And he went on. वो चले गए and she remained in her evening gown. और मैडम लॉइजल बेचारी अभी भी अपने evening gown में ही थी, not having the force to go to bed. अभी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, उनमें ताकत ही नहीं थी कि सोने जा सके. Towards 7 o'clock her husband returned. सो नहीं पा रही थी वो, वेट कर रही थी. 7 बजे के आसपास the husband returned. He had found nothing. उन्होंने आके बताया that he had found nothing. उन्हें कुछ नहीं मिला. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. वो पुलिस के पास गए, कैब ऑफिसेस गए और एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट भी डला दिया उन्होंने ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, जिसमें उन्होंने एक रिवॉर्ड ऑफर किया है दैट जो भी उनका ये नेकलेस फाइंड ढूंढ के लेके आएगा उनके पास में उसे वो एक बहुत ही सूटेबल रिवॉर्ड भी देंगे. She waited all day in the state of bewilderment before his frightful disaster. Now she waited for the whole day. पूरे दिन उन्होंने वेट किया in the state of bewilderment. हैरान परेशान सी बेचारी देखती रही पूरे दिन. Before this frightful disaster. ये frightful disaster हुआ उनके साथ में. वो डर गए वो लोग, तो डरना ही था. नॉर्मल नेकलेस खरीदने की जिनके पास में गुंजाइश नहीं थी, अब सोचो किसी का डायमंड नेकलेस कैसे रिटर्न किया जाएगा. Loisel returned in the evening. Whole afternoon she just waited कि कहीं कुछ information आए, नहीं आई. In the evening Loisel returned back, his face pale. वही मुरझाया हुआ उदास सा चेहरा उनका.
एंड ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, और उन्होंने बताया कि मुझे कुछ नहीं मिला. आई हैड डिस्कवर्ड नथिंग. ही सेड, उन्होंने बोला, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. तो वो बोले अब फ्रेंड को कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना, जस्ट टू लेट हर वेट फॉर सम टाइम, जब तक हम कुछ मैनेज करें. उन्होंने बोला जस्ट राइट टू योर फ्रेंड दैट तुमने ना उसकी क्लास्प होती है ना, सो नेकलेस को बंद करने वाली जो कड़ी बोलते हैं, वो टूट गई है, एंड यू विल हैव टू रिपेयर इट. तुम्हें उसको रिपेयर करा के ही तुम उसको दोगी, तो तुम्हें रिपेयर कराना होगा, तो इट नीड सम टाइम. एंड दिस वे, ये सिचुएशन हमें कुछ समय दे देगी. विल गेट सम टाइम. हम सोचें क्या. शी रोट एज ही डिक्टेटेड. उसने लिखा जैसे जैसे उनके हस्बैंड ने डिक्टेट किया. शी रोट इट. एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स. हफ्ते भर का समय तो मिला, बट एट द एंड ऑफ द वीक उन्होंने सारी उम्मीदें लूज कर दी, खो दी सारी उम्मीदें. अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी. एंड लॉइजल, ओल्डर बाय 5 years, और मिसेस लॉइजल जो मैडम लॉइजल थी 5 साल बड़ी थी उससे, डिक्लेयर्ड, उन्होंने क्या कहा, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल. अब हमें इस ज्वेल को रिप्लेस ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा. इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. उन्होंने बोला इन अ शॉप ऑफ पैलेस रॉयल, उन्होंने एक चैपलेट, एक काइंड ऑफ नेकलेस ही होता है वो भी, वो देखा डायमंड का, जो एग्जैक्टली वैसा लग रहा था दैट दे हैड लॉस्ट, एंड वो वैल्यू कर रहा था कितनी, 40,000 फ्रैंक्स. एंड उसे वो, उन लोगों को वो 36,000 फ्रैंक्स में मिल जाएगा. दैट इज 4,000 फ्रैंक्स लेस. लॉइजल possessed 18,000 फ्रैंक्स. लॉइजल के पास में कितने फ्रैंक्स थे, 18,000 फ्रैंक्स थे, जो उनके फादर छोड़ गए थे उनके लिए, the which his father had left him. He borrowed the rest. उन्होंने रेस्ट जो फ्रैंक्स थे वो बोरो किए. नाउ उन्होंने लोगों से ruinous promises किए that I'll return you जहां से भी, and took money from the ushers, जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे उन्होंने पैसा उधार लिया. And the whole race of lenders, and the whole race of lenders, जो भी उधार पैसा देने वाले लोग थे उनसे उन्होंने कुछ करके पैसे इकट्ठे किया, एंड अल्टीमेटली उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स इकट्ठा किया. देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस. फिर वो नया नेकलेस लाए, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स. मर्चेंट काउंटर दैट इज द कैश काउंटर जो होता है, वहां पे उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स सबमिट किए, एंड उन्होंने वहां से नेकलेस ले लिया. व्हेन मैडम लॉइजल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फॉरेस्टियर, जब मैडम लॉइजल मैडम फॉरेस्टियर के पास में वो ज्वेल वापस लेके गई, द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम. तो मैडम फॉरेस्टियर ने क्या कहा उनको बहुत ही फ्रिजिड सी, दैट इज बहुत ही रिजिड सी, स्ट्रिक्ट सी टोन में, ऐसे अकड़ते हुए, दैट इज जो बोलते हैं ना घमंड में, उन्होंने क्या कहा, तुम्हें इसको मुझे थोड़ा पहले रिटर्न कर देना चाहिए था, क्या पता मुझे भी इसकी जरूरत होती, तुम तो इसको लेके ही बैठ गई, उन्होंने ऐसे बोला. नाउ एट दिस पोजिशन, इस सिचुएशन में मैडम फॉरेस्टियर, शी डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, जैसा कि मैडम लॉइजल को डर था दैट वो खोल देंगी. What would she think, अगर वो परसीव कर लेंगी that this is not her necklace, this is the substitution. What should she say, तब वो क्या बोलेगी, what would she take her for the robbery, क्या वो उसको चोर डिक्लेयर कर देगी. Now Madam Loisel says now knew the horrible life of necessity. मैडम लॉइजल जिन्हें अभी अपनी हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी के बारे में सब पता था, शी डिड हर पार्ट, उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया. हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, बहुत ही कंप्लीटली, बहुत ही हीरोइकली उन्होंने इस पार्ट को फिनिश किया. इट वाज नेसेसरी. क्यों, क्योंकि नेसेसरी था टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट. ये जो उधार हो गई थी ना, डरा देने वाली उधार, इतनी बड़ी उधार, उसको चुकता तो करना था आपको. शी वुड प्रीपे इट, उन्हें पे करना था, एंड शी वुड पे इट. They sent away the maid. इसके लिए उनको बहुत जगह से पैसा सेव करना पड़ा. उन्होंने सेव करने के लिए क्या किया, मेड को भेज दिया, सारा काम बेचारी खुद करती थी. तो यू कैन से दैट ये तो एक हीरोइज्म ही है, ये तो चैलेंज ही है. दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपने लॉजिंग्स, अपना रहने का घर बदल दिया. दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक, एक छोटे से एटिक में, जैसे होता है ना छोटी सी जगह होती है, कहीं सीढ़ियां चढ़ के एक छोटा सा एक कमरा बना हुआ होता है, दैट इज यूज्ड एज अ स्टोर काइंड ऑफ पर्सन.
प्लेस, तो उसने उस तरह के एक प्लेस पे वो लोग शिफ्ट हो गए सो दैट कि वहां पे उनका रेंट कम पे करना पड़ेगा, तो दैट मनी आल्सो दे कैन यूज टू रीपे द डेब्ट्स. शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ द किचन, जहां पे उनके पास में कुक्स होते थे, अब उन्होंने वो किचन का काम भी बेचारी ने खुद करना सीखा. शी वॉश द डिशेज, बर्तन धोने के लिए द मेड यूज टू कप, बर्तन वो खुद धो रही थी. शी वॉश्ड द सॉइल्ड लिनन, धुल कपड़े, मैले कपड़े शी started washing their clothes and dish clothes, कपड़े धोए, linens that is the bed sheet curtains वो सब धोती थी. डिश क्लॉथ्स, बर्तन पोंछने वाले जो कपड़े होते थे उनको धोती थी. विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, सुखाने के लिए भी खुद ही डालती थी. ये चीजें वो कुछ भी नहीं करती थी, बट नाउ शी हैज टू डू दीज थिंग्स, ये चीजें उनको करनी पड़ रही थी. She took down the refuse to street. Now वो बचा हुआ जो भी वेस्ट खाना वाना जो भी होता था, she took that dirt and refuse to the street each morning. हर सुबह वो लेके जाती थी वो कचरा बाहर रोड पे. एंड पीने का जो पानी वो भी भर के बेचारी ऊपर तक लेके आती थी. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, सांस लेने के लिए हर एक जगह जो स्टॉपिंग प्लेसेस आती थी वो वहां पे रुकती थी. शी यूज्ड टू ब्रेथ, सांस लेती थी गहरी. एंड शी यूज्ड टू मूव फर्दर. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers and the fruiterers. अब clothed like a normal woman of the people, जैसे आम ladies जो भी थी, normal women of that living around her जैसे dress up करती थी, she dressed like that. And she went to the grocer, खुद जाती थी, butcher खुद जाती थी, fruit sellers के पास पे खुद, with her basket on her arms, उनके हाथ में उनकी basket. शॉपिंग, हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, और शॉप करती थी, कैसे हैगल करती थी, बार्गेन करती थी, वो लास्ट सो ऑफ दैट मिजरेबल मनी ना, छोटी सी एक पाई भी अगर वो वहां से किसी लेवल पे अगर वो बचा सकती थी तो शी यूज्ड टू सेव दैट मिजरेबल मनी. व्हाई शी इज सेइंग मनी मिजरेबल? Because this money has brought a miserable life to her. This money is the reason about all the misery that presently she is facing in her life. Husband worked evenings, putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 soles a page. At this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had restored all. Now husband बेचारे इवनिंग में भी वर्क करते थे. पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, मर्चेंट्स की कुछ किताबों को ऑर्डर में लगा दिया. रात को वो कॉपी डाउन करने का काम करते थे. फॉर 5 सॉज अ पेज वो चार्ज करते थे. एंड ऐसे उनको ऑलमोस्ट दोनों को इस तरह से स्ट्रगल करते हुए, अपनी लग्जरीज का बलिदान त्याग करते हुए, पेइंग फॉर ऑल दी सैक्रिफाइसेस, उन्हें अल्टीमेटली इट लास्टेड फॉर 10 years, 10 साल लग गए. And the end of the 10 years they had restored all. And at the end of the 10 years उन्होंने ये सब चीजों को क्या किया? रिस्टोर किया. ठीक है, एट द एंड ऑफ द 10 years इन्होंने ये सब कुछ रिस्टोर कर लिया. 10 साल बर्बाद करने में लग गए उनको, 10 साल उस पैसों को उन्होंने रिस्टोर करने में लगाया. एंड दे पेड ऑल दी डेब्ट्स. नाउ मैडम लॉइजल, इस 10 साल में ये जो उन्होंने इतना ज्यादा मेहनत सफर कर ली, इतना ज्यादा ट्रबल कर लिया ना उन्होंने खुद के लिए, उसमें क्या होता है जब आप बहुत परेशानी में होते हो ना, यू ग्रो ओल्ड सून. तो सिमिलरली मैडम लॉइजल, नाउ शी वाज अ ब्यूटीफुल लेडी एट वन टाइम, शी सीम्ड ओल्ड नाउ. शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन. पहले वो बहुत ही डेलिकेट सी थी, अभी वो बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन हो गई है, बहुत हार्ड वुमेन हो गई है. क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, जैसे पुअर हाउस होल्ड की जो स्ट्रिक्ट एंड जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथी वुमेन होती है ना, वैसी हो गई है वो, क्योंकि अभी उन्हें बहुत काम करना पड़ता है. दैट इज वाई उनमें बहुत स्टेमिना आ गया है, बहुत स्ट्रेंथ आ गई है. हर हेयर्स बैडली ड्रेस्ड, बाल बहुत ही ऐसे गंदे से बना रखे हैं उन्होंने. हर स्कर्ट्स ऑरी, एंड स्कर्ट उन्होंने बहुत ही गंदी सी अजीब सी पहन रखी है. दैट इज नॉट ब्यूटीफुल वन. हर हैंड्स रेड, हाथ बिल्कुल लाल है. शी स्पोक इन अ लाउड टोन, पहले बहुत स्विफ्ट एंड काम बोलती थी, अभी बहुत ही लाउड बोलने लग गई है वो. एंड वॉश द फ्लोर विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, एंड शी वॉश द फ्लोर्स, फ्लोर साफ किए उन्होंने, विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, को पानी डाल डाल के बेचारी फर्श साफ करती थी. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ द ब्यूटीफुल पार्टी ऑफ द फॉर्मर टाइम्स, of that ball where she was so beautiful and so flattered. But sometimes वो सारे काम करती थी, बट कभी कभी क्या होता था, when her husband was at the office, वो बैठती थी विंडो के आगे
she kept on thinking and thinking of the evening parties she used to had in the former times, and she was also thinking about that ball party जिसमें वो बहुत beautiful लग रही थी, and she was so flattered by all. How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life and how full of changes, how small a thing will ruin to or save one. उन्होंने बोला that how would it have been, कैसा होता if she had not lost the necklace, अगर उन्होंने अपना नेकलेस खोया ना होता. Who knows, कौन जानता है, how singular is life, कितनी सिंगुलर है लाइफ, एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, एंड कितने बदलाव आ जाते हैं जिंदगी में. देखो उनकी लाइफ कितनी अच्छी थी, चेंज हो गई, वापस कोई बात नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ी, अगेन इट्स गोइंग टू चेंज. लाइफ इज जस्ट लाइक अ क्लॉक जो बार बार गोल गोल घूमती है, आगे बढ़ती है, घूमती है, बट अगेन रिटर्न बैक टू द सेम थिंग. लाइफ इज ऑल्सो दिस काइंड ऑफ, वी आर एनसर्कलिंग. आज अच्छा है, कल बुरा होगा, वापस अच्छा होगा, फिर बुरा होगा, अच्छा होगा. सो अप्स एंड डाउन्स का तो ये एक सर्कल है, एंड वी हैव टू फेस इट. बस बात ये है, जिसने सेंसिबली इसको फेस किया, जो सेंसिबली इसके साथ में मूव करा, दैट पर्सन इज नेवर गोइंग टू बी इन लॉस. हार्डशिप्स आ सकती है, बट नॉट नथिंगनेस. तो यहाँ पे इन्होंने जब वो सोच रही थी हाउ वुड इट हैव बीन, उन्होंने बोला कैसा होता ना, इट्स अ क्वेश्चन, अगर उन्होंने नेकलेस ना खोया होता, कौन जानता है कैसा होता. लाइफ बहुत ही सिंगुलर है एंड इट्स फुल ऑफ चेंजेस. हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन, कितनी छोटी बात है कि पता नहीं सब बर्बाद हो जाएगा या हम कुछ चीज हमें बचा लेगी, हमें नहीं मालूम. वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द Champs Isles to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Forestier. Still young, still pretty, still attractive. Madame Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? Now, one Sunday, as she was just walking, वो वॉक कर रहे थे कहाँ पे? In the Champs Isles to rid herself of the cares of the week. ठीक है, अब वहां पे उन्होंने देखा, शी सडनली, उन्होंने एक वुमेन को परसीव किया, वहां पे उनकी नजर गई एक वुमेन पे, और वो वुमेन कौन थी? शी वॉज वॉकिंग विद अ चाइल्ड, वो एक बच्चे के साथ में वॉक कर रही थी, एंड वो कौन थी? मैडम फॉरेस्टियर थी. शी वॉज स्टिल यंग, वो आज भी बहुत यंग थी, बहुत प्रिटी थी, बहुत अट्रैक्टिव थी. बट हमारी जो मैडम लॉइजल है, उनकी तो लाइफ में सब कुछ चेंज हो चुका है. मैडम लॉइजल बहुत इफेक्टेड हुई, और उन्होंने बोला इससे बात करूंगी कि नहीं करूं, बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं इससे बात करने जाऊंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, शी विल मेक मी फील लुक डाउन टुवर्ड्स, तो मैं नहीं जाऊंगी इसके पास में. एंड जेलस थी, एनवियस थी वो उनसे, बट यस सर्टेनली, पर वो गई. एंड नाउ, क्योंकि उसने बोला मुझे बात करने में क्या है, आई हैड पेड, अब तो मैं अपना सारा कर्ज चुका चुकी हूँ, तो मुझे क्या है. शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट, अब मैं उसे जाके सारी बात बता देती हूँ, व्हाई नॉट, क्या नहीं बता सकती? यस. She approached her, वो गई. Good morning, Jenny. उन्होंने बोला good morning, Jenny. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. अब मैडम फॉरेस्टियर जो थी, उन्होंने जो फ्रेंड थी उनकी, हम कह सकते हैं, उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, पहचाना ही नहीं, बिकॉज मैडम लॉइजल अभी बहुत ही बूढ़ी और कैसी दिखने लग गई थी, उन्होंने उसको नहीं पहचाना. बट वो बहुत हैरान थी, बहुत एस्टॉनिश थी. व्हाई? बिकॉज शी जस्ट थॉट दैट मैं नहीं जानती दैट हु दिस लेडी इज, बट हाउ फेमिलियर शी इज एड्रेसिंग मी, एंड दैट टू विद सच अ कॉमन पर्सनेज, दैट इज विद सच अ कॉमन नेम, जेनी. ऐसे तो इतना इजीली कोई नहीं बोलता. हु इज दिस लेडी जो ऐसे बुला रही है मुझे? नाउ उन्होंने बोला, शी स्टैमर्ड, वो थोड़ी सी हकलाई, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. She just stammered a little, हकलाते हुए बोली, बट मैडम मुझे नहीं मालूम आप कौन है, मैं आपको नहीं जानती, आई डू नॉट नो, आई थिंक आपको कोई गलती हुई है. नो, आई एम मैटिल्डा लॉइजल. उन्होंने बोला नहीं, मैं मैटिल्डा लॉइजल हूँ. नाउ हियरिंग दिस, हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट. अब उनकी फ्रेंड जो थी मैडम फॉरेस्टियर, ये सुनने के बाद में शी जस्ट अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, हैरानी. ओ माय पुअर मैटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज्ड. उन्होंने बोला ओ माय पुअर मैटिल्डा, तुम ऐसे कैसे बदल गई हो? हाउ हैव यू चेंज्ड लाइक दिस, तुम इस तरह से कैसे बदल गई? यू हैव कंप्लीटली चेंज्ड. यस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू. उन्होंने बोला हाँ, बिकॉज मेरी जिंदगी में ना बड़े कठिन दिन आ गए थे, सिंस आई सॉ यू,
एंड बहुत बुरे दिन भी आए, एंड यू नो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। उन्होंने बोला बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरी वजह से, ऐसा कैसे? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल। उन्होंने बोला तुम्हें याद है तुमने मुझे अपना एक नेकलेस दिया था एज ए लोन, लोन मी मीन्स उधार दिया था तुमने मुझे उसको पहनने के लिए, दैट आई वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल पार्टी, याद है तुम्हें? उन्होंने बोला यस, यस वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट। उन्होंने बोला वेल, उसने बोला यस वेरी वेल आई नो इट। उन्होंने बोला वेल अब मैं तुम्हें बताती हूँ, आई लॉस्ट इट। तुम तो बोल रही हो यस वेरी वेल, यस वेरी वेल, यस वेरी वेल, बट यू नो आई लॉस्ट इट, मैंने खो दिया था उसको, आई लॉस्ट इट। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। उसने बोला वेल ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे रिटर्न कर दिया था, आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक दैट। उसने बोला मैंने तुम्हें सेम लुकिंग एग्जैक्टली विच लुक लाइक दैट, मैंने तुम्हें वो रिटर्न किया था, एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और तुम्हें पता है उसके तुम्हारे नए नेकलेस के पैसे पे करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस टू हैव नथिंग। उन्होंने बोला तुम्हें समझना चाहिए इस चीज को कि हमारे पास कुछ नहीं था, एंड टू हैव नथिंग it was not easy for us but it is finished and I am decently contented। उसने बोला but ठीक है, now the thing is finished, I have returned your necklace, I have paid for that necklace, मुझे उसके लिए जो पे करना था मैंने वो पे भी कर दिया, जो हमारे डेब्स थे we have paid all the things and now it is finished and I am decently contented। और मैं बहुत ही decently बहुत contented हूँ, अभी इस समय पे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, जो हुआ हुआ, now everything is fine। नाउ मैडम फॉरेस्टियर का क्या रिएक्शन था देखो, स्टॉप्ड शॉर्ट, वो एकदम से ही जस्ट स्टॉप्ड शॉर्ट, कहने का मतलब एकदम से हैरान होके, शॉक्ड होके वो वहीं पे रुक गई। शी सेड, उन्होंने कहा यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। उन्होंने बोला तुमने क्या कहा कि तुम मेरा नेकलेस रिप्लेस करने के लिए क्या लेके आई थी, रियल डायमंड नेकलेस लेके आई थी। यस यू डू नॉट परसीव इट देन दे वर जस्ट लाइक। उसने बोला यस इसका मतलब तुम्हें नहीं पता चल पाया ना, वो बिल्कुल वैसा ही दिखता था, दे बोथ वर सिमिलर। उसे ये आइडेंटिफाई करना कि वो दोनों अलग है बहुत मुश्किल था। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, ऐसा कह के she just smiled with proud and simple joy। Madam Forestier was touched and took both her hands as she replied। Madam Forestier was touched at heart and उन्होंने उनके हाथ अपने हाथों में लिया and she replied, उन्होंने बोला oh my poor Matilda, oh my poor Matilda, mine were false। मेरा नेकलेस तो नकली था, it was artificial, they were not worth over 500 francs, वो 500 फ्रैंक्स से ऊपर का नहीं था, जिसके लिए तुम मेरे लिए रियल डायमंड नेकलेस लेके आ गई 36,000 फ्रैंक्स का। व्हाट यू डिड। नाउ एट दिस पॉइंट, दिस शॉकिंग, दिस एक्सक्लेमेटरी पॉइंट, द चैप्टर इज ओवर। बट व्हाट एक्चुअली वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द चैप्टर, दैट इज कि हमारे पास जो है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हम किसी को देख के उसके जैसा बनना चाहेंगे, आगे बढ़ेंगे, वी विल ऑलवेज रूइन आवर लाइफ। एंड अगर हम लालच करते हैं, वी विल बी ग्रीडी समवेयर, तो वी आर गोइंग टू पुट आवर लाइफ इनटू ट्रबल। सो जो आपके पास है उसमें खुश रहो। यहाँ पे मैटिल्डा के पास जो था, शी वाज नॉट सेटिस्फाइड, उसके लिए उन्होंने देखो क्या किया, एंड शी हरसेल्फ गॉट कॉट इन द ट्रैप, वो उसी जाल में फंस गई। एंड उस ट्रैप ने देखो उनको लाइफ में कितने डिफिकल्ट, कितने हार्ड टाइम्स को उनको फेस करने पे मजबूर कर दिया। एंड एट लास्ट व्हेन यू गॉट टू नो दैट आपकी इतनी हार्डशिप, आपका इतना ट्रबल किसी भी काम का नहीं है, then you know which situation you are completely at a broken situation। उस समय पे आपको ये चीज रियलाइज हो जानी चाहिए that be content, be satisfied with what you have, don't look at other people, don't be envious of other people's luxuries and materialistic pleasures। and वैसी pleasures अपने लिए आप इस तरीके से लेने की कोशिश मत करो that under a peer pressure you are just doing that things and you yourself actually are not enjoying these things। तो ऐसा नहीं है, दूसरों को देख के मत जियो, बी कंटेंट, बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव सो दैट यू कैन लिव अ सक्सेसफुल एंड अ हैप्पी लाइफ। ओके, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय गे डी म्यूसेपेंट। बहुत मजेदार स्टोरी थी विद अ वेरी सेंसिबल मैसेज दैट वी ऑल शुड इम्बाइब इन आवर लाइफ, सो दैट हमारी भी लाइफ लेस ऑफ ट्रबल्स, भले लॉट ऑफ हार्डशिप हो, दैट शुड बी अ पॉजिटिव हार्डशिप, एंड लेस ऑफ ट्रबल एंड अल्टीमेटली अ सक्सेसफुल एंड अ हैप्पी लाइफ फॉर आवरसेल्व्स। Okay, so it's Gedi Musapent who wrote this beautiful story and I hope you all understood it। अगर बहुत अच्छे से समझ में आई है तो एक बार हैंड रेस करेंगे, क्विक फास्ट।
Yes, good. So students, this is all for the class today, and we have finished a very beautiful story that is a necklace, and with a very beautiful message that the story gives us. And now we'll be meeting tomorrow in our next class with a new topic. Till then, just take care of yourself. Okay.